Yes, recording तो शायद हो जाएगी. Okay, I will record it. हो गई है शुरू, Yes, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई. yes. Okay. ओके, सो समीमा ने भी ज्वाइन कर लिया है और आपने ज्वाइन कर लिया है. और ओके, सो लास्ट टाइम हम जो स्टडी कर रहे थे, सो वी कवर्ड एक्चुअली द मेमोरी पार्ट, जो हमारा कुछ रह गया था चैप्टर 4. और उसके बाद हमने इंटरनल आईओ स्टडी किया था. और आज के लेक्चर में हमें ये करना था कि जो माइक्रो कंट्रोलर की असेंबली लैंग्वेज है उसका पोर्शन कवर करना था. सो लास्ट टाइम I instructed you people to read the timer section. So अब I don't know कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा अब तक, क्योंकि हमने ये कवर किया था. जो मैंने शेयर की हुई है स्लाइड, बल्कि PDF है, LMS पे भी अपलोड की हुई है. सो इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं. तो हमने शुरू के चैप्टर्स कवर कर लिए थे लैब में भी और ड्यूरिंग द क्लास आल्सो. एंड वी कवर्ड its special function registers, its set of instructions ki how we can actually write in assembly language, although we have equivalent C language compilers now which we can use to easily program any controller or processor. But as this course is based on assembly language, so we need to do assembly language. So just a review what we have actually studied in the programming side. We actually covered the microcontroller basics, its structure. We know how many control timers it has. We know like it has two timers, it has one serial port, it has 256 bytes of RAM, and it has 8K flash memory which we can use to program. And these are the set of different registers which we studied, that what is the purpose of each of them. Like this is the register for port P0. Then we have stack pointer register, we have data pointer register to address the external memory, DPL and DPH. These are both 8 bits, so they, when they are combined, they generate 16-bit address, 8 bit and 8 bit, DP low and DP high. Data you can think of them as a pointer. Then we have power control register, we have timer control register. So we will be talking about this timer control register today, and the timer mode register, that how we can use them to control the timers and what actually we can do with the timers. Then we have some registers which are meant for the timers, like TL0 is for timer 0, TL1 is for timer 1, it is a low byte register. Similarly we have TH0 which is for timer uh, high byte of timer 0, and TH1 which is for high byte of timer 1. Okay, let me cover this. Okay, let's. Okay, so I think, can you see this PDF file again? Are you people able to see this PDF file? Yes, sir. Okay, so now then we have port control register. Like for port 1 we have P1, for port 0 we have P0, and these are bit addressable also. So we can also set individual bits of a port. And then we have serial control register, which controls the serial port, how it is going to be operated. And to send or receive data from the serial port we use SBUF register. So coming back to the chapter which is meant for timers, I think you should have learned all of this because I told you last time to cover this.
and also to cover the this chapter 7. So I will start with the chapter 7, okay, how we can actually control timer using assembly language. So in our personal computer, we don't actually can see how timer is working. We need to do some low level programming. So the advantage of doing the same thing in timer is that you can actually see what is happening, and you can also see through the ADSIM, the emulator which we are using, that what are actually the contents of each of the registers, and then you can control the 7 segment using timers also. So coming starting one by one, that 8051 which we are studying has actually 2 timers. So what is the actually general functions of the timer? First one is to keep time or calculate the amount of time between the events, like you can calculate the duration. Then counting the events, if you want to count the events, like how many times a person has passed from this location, how many cars have passed. So this kind of counting of objects you can also do. And then third function of the timer is to generate the baud rate for the serial port. So if you have heard something like that, this sensor or this data is generated or is transmitted over any line, transmission line, using bandwidth of 13 kilobits per second or 1400 bits per second or something like this. So this is actually the baud rate, you can say, for the serial port. If we are connecting serial port to communicate with the outside world. So in case of Wi-Fi or wireless LAN or USB, you have a very high bandwidth, but serial port has limited bandwidth. So we have normally the baud rate or the speed in order of k, like 4800 bits per second. Maximum is 115k kilobits per second. Okay, so the purpose of 1 minute, sorry. So the purpose of the timers, as we have seen, is first one is to calculate the amount of time between the events, like duration. You can calculate the events, the number of objects, or something like this, and you can also use it to generate baud rate for the serial port. Now, coming to the timer basics, that how timer counts. Normally in the controller which we are studying, and in most of the controllers or even in the computers, the timer always counts up. So when you are designing a counter, so you would be having in mind, okay, if I am designing a counter or timer, so it means okay, it will be composed of counters which actually count always up. But it is not the limit. Nowadays we have also having a timer which actually also count backwards. But for our study, we will be sticking to this point that a timer always counts upward. Okay. Now measuring time. So one of the primary uses of timer is to measure time, and to also to count events, as we have seen earlier, and also to generate baud rates. Now we look at the some of the registers, that how we can implement or configure our timers to do these functionalities or to perform these functionalities. Okay, so we have 2 timers. One is named as timer 0, other one is timer 1, and we have special function registers which are 2 in number, and they are timer mod and timer control registers. So timer mod and timer control registers actually share the bits for timer 0 and timer 1, and each of the timers individually have their own special function registers which are known as th0, TL0, and TH1 and TL1 for timer 0 and 1 respectively. TH0 means high byte of timer 0, TL0 means low byte of timer 0, TH1 means high byte of timer 1, and TL1 means low byte of timer 1. Okay, so this is the table, or in tabular form you can see TH0 timer 0 high byte, TL0 timer 0 low byte. So these timer registers we need to fill with the value. So, and we will see how we can configure it. Now you can also see that we have also the memory address of these registers. So it means you can you have an option. Either you can use
the name of the register TH0, or you can just use uh, the direct address like what I am highlighting right now. You can use either this if you know the address of the register, or you can use it like this. So anyway, the if you are using this style where you are using TH0, then the assembler will convert into this 8CH. Okay, so if you want to put a value of 03E8, which I have highlighted here, so how you can put it? You have to put high byte in TH0 and low byte in TL0. Okay. Okay. Since there are only 2 bytes devoted to the value of each timer, it is apparent that the maximum value a timer may have is 65535. Since we have TH0 and TL0 for one timer and they are both 8 bits, so we have total 16 bits. So 2 की power 16 अगर आप calculate करें, so it becomes 65,535, which is written at the bottom कि इतनी वैल्यू ये एक्वायर कर सकता है टाइमर. ओके, तो अगर हमारे पास 8 बिट होगा तो वो 256 कर सकता है, अगर वो 16 बिट है तो वो 65535 कर सकता है. सो आर यू पीपल गेटिंग दिस वट एवर आई एम टेलिंग यू? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? कैन यू हियर मी? कैन यू पीपल हियर मी? Okay, I have just dropped a message in the chat box, so everyone should reply. Either they can hear me or not. Okay. Okay, so we will continue. Hopefully everyone is hearing me. ठीक है. Now we come towards the timer mod register, जिसके थ्रू हम देखेंगे how we can control the timer. So timer mode register is used to actually assign a particular mode to a timer. Okay, it has different modes, 3 modes. We will see it has uh, timer 8, timer mode 0, timer mode 1, timer mode 2. So we will see how we can configure them. Now first we look at the timer mode register itself के इसके contents क्या है, ठीक है? So if you see or if you start from the bit 0, it has timer mode bit which is known as T0M0 for timer 0. It has timer mode bit T0M1 for timer mode bit 1. Then it has CT0 bit. When this bit is set, the timer will count events on T0, P3.4. When this bit is clear, the timer will be incremented every machine cycle. So what does it mean? If you want to use your timer to measure the event, so you need to set this bit. By default हम क्या करते हैं कि इस bit को, which is actually bit number 0, 1, 2, which is bit number 2, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हम क्या करते हैं इसको क्लियर करते हैं, इसको सेट नहीं करते. अगर हम इसको सेट करेंगे तो क्या होगा, इट विल एक्सपेक्ट कि पोर्ट नंबर 3.1 में उसको एक ट्रांजिशन मिलेगा जिसके ऊपर वो टाइमर को इंक्रीमेंट करेगा. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली काउंट नंबर ऑफ इवेंट्स यूजिंग टाइमर. बट normally timer is used to count time or to produce delay, so that's why we will be actually using it by the default value of 0, and this is for timer 0. Another is gate 0.
which is actually a particular bit for timer 0. What it does, when this bit is set, the timer will only run when the interrupt is high. So it means कि if we want to run our timer based on a certain condition कि जब कोई interrupt generate हो उस वक्त ये timer run हो, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा कि gate pin for timer 0 which is known as gate 0 इसको set करना पड़ेगा. So when we will actually set this value in the timer mode register, तो होगा क्या कि now the timer will start running not by our instruction कि जी timer start हो, it will start running when it will receive an interrupt in P3.2 जो कि interrupt 0 से connect हुई हुई, जो कि schematic diagram में हमने शुरू में देखा था controller की, which is a 40 pin controller. It has some dual purpose pins also, like हमने देखा था external memory के लिए address और data की multiplexing होती है. Similarly interrupt pin के लिए port 3.2 is also used. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि गेट 0 की जो बिट है उसको जब हम सेट करेंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, हमारा टाइमर फॉर टाइमर 0 क्या एक्सपेक्ट करेगा कि इट विल स्टार्ट इट्स काउंटिंग व्हेनेवर इट विल रिसीव एन इंटरप्ट एट पिन 3.2. Similarly, for timer 1 we have T1M0, T1M1 which is actually mode bits कि जिसकी मोड क्या रखना है we will see later on. मोड अभी नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है कि मोड हम किस तरह सेट करते हैं. And then we have CT1 also, which is actually a bit which is used to count even for the timer 1. जिस तरह हमने timer 0 के लिए ये देखा था, we have CT0, we have CT1 here, and similarly we have gate 1 here, which is actually interrupt pin for generating or for starting the counter whenever it receives any interrupt. Okay, now we see कि जी टाइमर मोड हम किस तरह सेट करेंगे, जो हमने यहाँ पर बात की थी और टाइमर 0, एंड सिमिलरली जो हमने बात की है इधर फॉर टाइमर 1. सो इसीलिए आप देखेंगे TXM1 लिखा हुआ है कि डोंट केयर कि इट डजेंट मैटर कि इट इज फॉर टाइमर 0 1 और टाइमर 1. ठीक है, तो 00 जब आप पुट करेंगे इस बिट में तो व्हाट इट मींस कि 13 बिट टाइमर के तौर पे आपका टाइमर काम करेगा. 13 बिट का टाइमर क्या मतलब है कि 2 की पावर 13 मैक्सिमम जो उसकी रेजोल्यूशन है वो 2 की पावर 13 है. इट कैन काउंट अपवर्ड्स from 0 to 2 की power 13 minus 1. Okay, mode 1 timer 1. What happens in this mode कि timer is configured as a 16 bit timer, so it means कि 2 की power 16 65535 up to 0 to 65535 minus 1 वो काउंट करेगा. Mode 2, mode 2 is actually 8-bit auto reload mode. In this case what will happen कि timer will, whenever the timer will overflow, it will reload a value stored in the high byte of its register which is known as TL0 or TH0 or TH1. if we are using timer 0 तो TH1 में जो वैल्यू वो रिलोड करेगा. अगर हम टाइमर 1 यूज कर रहे हैं तो TH1 की वैल्यू यूज करेगा, टाइमर 0 में TH0 की वैल्यू यूज करेगा. सो ये जो मोड है 8-bit रिलोड मोड, इट इज यूज्ड फॉर सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन. वहां अगर आपको बाउट रेट जनरेट करना है तो कंट्रोलर के अंदर UART एक बिल्ट इन नहीं है जो हमारे नॉर्मल पीसी में होती है UART, which actually generates a serial port data. हमारे controller में we have limited resources, so we use timer to generate baud rate like 4800 bit per second, 9600 bit per second, 1200 bit per second. और ये किस तरह होगा, टाइमर हमें जनरेट करेगा और देन जब हम सीरियल बफ रजिस्टर में पुट करेंगे तो टाइमर इस बाउड रेट से डेटा आउट करेगा. ओके, एंड देन वी हैव अ 13 बिट then we have a mode 3 which is known as split mode. इस मोड में क्या होता है कि टाइमर 0 itself can become it can break itself into 2 timers. ठीक है, हमने देखा था कि फुल टाइमर हमारे पास 16 बिट का एक है टाइमर 0, इसी तरह टाइमर 1 जो है वो 16 बिट का टाइमर है. इसको अगर मैं चाहूँ दो टाइमर्स में ब्रेक करना, सो आई कैन डू दिस. क्या मैं टाइमर 0 को दो टाइमर से ब्रेक कर सकता हूँ, इसी तरह मैं चाहूँ तो टाइमर 1 को दो टाइमर से में ब्रेक कर सकता हूँ. सो दिस इज स्प्लिट मोड टाइमर, बट एट एनी वन टाइम आई कैन आइदर स्प्लिट timer 0 or timer 1. I cannot split them both. Okay, let's see how we can set this mode. Okay, mode 0 13-bit timer. Okay, so what will happen, okay, in this timer the maximum value will be 8192. So to make it overflow after our desired value हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू पुट करते हैं like 8192 minus our desired value. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट करें कि ओवरफ्लो कराना है आफ्टर 600
और आफ्टर इसमें जो 8192 मशीन साइकिल्स बन रही है, इफ यू वांट टू ओवरफ्लो इट आफ्टर 100 एवरी 100 मशीन साइकिल्स, तो हम क्या पुट करेंगे 8192 माइनस 100, ठीक है, वो हम पुट करेंगे इसके टाइमर L0 L1 में, एंड देन वी विल स्टार्ट टाइमर। से उससे क्या हुआ कि एवरी दिस मच मशीन साइकिल टाइम के बाद वो टाइमर ओवरफ्लो होगा और आपको इंडिकेशन एक मिल जाएगी। सो वी विल सी लेटर ऑन कि जी हम किस तरह ये करेंगे। फर्स्ट वी शुड बी कवरिंग दिस मोड्स, ठीक है, इसका मोड हो गया 0, देन इट हैज अ मोड 1 व्हिच इज 16 बिट टाइमर। 16 bit timer means कि it is using whole capacity, ठीक है, so it is just like 13 bit timer but except the difference कि all 16 bits are used, ठीक है। तो इसमें भी यही हो रहा है कि इंक्रीमेंट जो होगा वो अगर आप चाहते हैं कि 65535 आपका मैक्सिमम वैल्यू आप चाहते हैं कि आफ्टर एवरी 30,000 मशीन साइकिल्स जो है ओवरफ्लो हो, तो आपको 65536 माइनस 30,000 मशीन साइकिल जो है वो पुट करनी पड़ेगी। सो वी विल सी लेटर ऑन कि अभी हम किस तरह ये जो सारी बातें कह रहे हैं कि हम उसमें वैल्यू किस तरह पुट करेंगे। देन वी हैव मोड 2 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। सो इसमें क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया था कि हेयर द एक्चुअल रिलोड वैल्यू इज केप्ट इन TH(x) रजिस्टर, यानी कि TH1 टाइमर 1 के लिए TH1 हो जाएगा, टाइमर 0 के लिए TH0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी टाइमर ओवरफ्लो होगा, आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद जाहिर बात है उसको 0 होना होता है। इन रेस्ट ऑफ द मोड्स ये होता है कि जैसे ओवरफ्लो हुआ, लाइक फॉर 16 बिट टाइमर जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी थी 655,536 की थी, उसके बाद क्या होता है जो ओवरफ्लो होता है तो दोबारा 0 से स्टार्ट होता है रनिंग। लेकिन 8 बिट ऑटो रिलोड मोड में क्या होगा, जब वो ओवरफ्लो होगा तो उसने जो TH(x) के अंदर TH(x)(1) हो या 0 हो, जो भी वैल्यू रखी होगी वो रिलोड कर देगा टाइमर में। तो उससे क्या होगा कि टाइमर काउंटिंग स्टार्ट करेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड नॉट फ्रॉम 0, ठीक है। सो दिस मोड इज यूज्ड इन द सीरियल पोर्ट बाउंडेड जनरेशन। इसकी एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि वो रिलोड किस तरह कर रहा होगा। सपोज ये आपकी मशीन साइकिल्स हैं, आपको टेबुलर नजर आ रहा है, एंड वी हैव दिस TH0 वैल्यू जो हमने टाइमर 1 0 हम अज्यूम कर रहे हैं वो है, तो हमने क्या कहा था कि TH(x) होल्ड करेगा रिलोड वैल्यू, तो हम टाइमर 0 अज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ TX1 की जगह क्या है, वी हैव TH0, ठीक है। आई थिंक देयर इज ओके, ठीक है। सो वी हैव दिस कि हमने टाइमर H0 में एक वैल्यू फिक्स कर दी, और आप ये देखेंगे ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमने कहा कि ये वैल्यू जो है हम हमेशा पुट करेंगे जब भी टाइमर ओवरफ्लो होगा। तो सपोज अवर टाइमर स्टार्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू FEH, तो आप देखेंगे इंक्रीमेंट हो रहा है, एवरी मशीन साइकिल लेके एक इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब ये ओवरफ्लो होता है FH आ जाता है, उसके बाद नॉर्मल मोड में क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर 0 पुट हो जाता, बट हेयर वी गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस जो FDH में हमने रखी हुई, ठीक है। तो हमने ऑटो रिलोड कर दिया, जो हमने वैल्यू स्टोर की थी TH0 में वो हमने यहाँ पुट कर दी, और फिर वो दोबारा से काउंट अब यहाँ से शुरू करता है, तो ये वैल्यू वही है जो FEH थी, ठीक है। तो वो हमेशा रिलोड वैल्यू उठा लेता है जो कि उसके हाई रजिस्टर में पड़ी हुई होती है THX में, इस केस में TH0 था। अच्छा, अब इसका मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और आप पीडीएफ में पढ़ भी सकते हैं कि इसकी डिटेल पूरी, कि इसका बेनिफिट क्या है, कि अगर आप चाहते हैं कि टाइमर को कि वो हमेशा काउंट करे वैल्यू फ्रॉम 200 टू 255, लाइक हमें बाउंड रेट जनरेट करना है, तो हम 0 पे नहीं जाएंगे, हमेशा जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू इसके अंदर ही बाउंड रेट जनरेट होगा। तो अगर हम मोड 0 या 1 यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि जी टाइमर ओवरफ्लो कब हुआ, उसके बाद हम टाइमर को रिसेट करते हैं, उसको दोबारा 200 वैल्यू पुट करते। अब इस केस में क्या हो रहा है कि वी आर एक्चुअली डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू थ्रू अवर हार्डवेयर के, हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें हमने एक रजिस्टर में लोड करा दी वैल्यू, और जब भी टाइमर ओवरफ्लो होगा वो वैल्यू पुट हो जाएगी उसके रजिस्टर में, और फिर वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। The auto reload mode is very commonly used for establishing a bound rate which we will talk, ठीक है। ये सीरियल कम्युनिकेशन में हम देख भी लेंगे, और जैसे मैंने बताया कि सीरियल पोर्ट जब आप यूज करते हैं सो यू नीड टू जनरेट डिफरेंट बाउंड रेट्स, तो वहां पर हम यूज करते हैं इसको। Then we have the last mode which is known as the split timer mode, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि टाइमर 0 is placed in mode 3, it essentially becomes two separate 8 bit timers, ठीक है। अगर आप टाइमर को
मोड 3 में पुट करेंगे बाय पुटिंग स्पेशल वैल्यूज इन द टाइमर मोड रजिस्टर जो हमने देखा था। उससे क्या हुआ कि आपका जो 16 बिट का टाइमर जो था वो अब दो टाइमर्स में स्प्लिट हो गया। सो इफ यू वांट टू यूज टू टाइमर्स देन यू कैन यूज दिस वे। नाउ वी लुक एट टाइमर कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, हमने टाइमर मोड रजिस्टर देखा, उसमें देखा हाउ वी कैन सेट द टाइमर TL0 TH1 क्या होता है, TH1 TH0 क्या होता है, TL0 और इस तरह TH0 देख लिया। नाउ वी आर लुकिंग एट द टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, अब टाइमर कंट्रोल रजिस्टर क्या है एंड हाउ वी कैन यूज दिस। अगर आप देखें फॉर टाइमर वन, अगर आप राइट मोस्ट साइड पे देखें टाइमर वन लिखा हुआ है और इसका आगे लिखा हुआ है बिट नेम। ठीक है, टाइमर कंट्रोल इट मींस कि इट इज बिट एड्रेसेबल रजिस्टर है। टाइमर कंट्रोल रजिस्टर जो हमारे पास है टीकॉन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इट इज बिट एड्रेसेबल। और वो क्यों है, वो आपको ये टेबल देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें जो TF1 है बिट 7 है, ये टाइमर वन ओवरफ्लो, this bit is set by the microcontroller when timer 1 overflows. It means कि if we want to check कि जी timer 1 में overflow हो चुका है, क्या वो pass कर चुका है अपनी maximum value, so how we can set it और how we can actually test it, that we need to poll this value कि जी TF1 set हुई ही नहीं हुई. It is one of the method to see कि जी ये overflow हो गया तो मैं फिर अपना increment कर दूं, LED में कुछ indication दे दूं, serial port पे data out कर दूं, जो भी मुझे करना है. Okay. इसी तरह अगर मुझे टाइमर वन को रन करना है, मुझे टाइमर को रन भी तो करना होगा। जो हमने देखा है कि पहले हमने टाइमर के मोड सेट कर दिए, अब हमें टाइमर को रन भी करना है। तो हम रन किस तरह करेंगे, उसके लिए ये बिट एड्रेसेबल लोकेशन ATH है। आइदर यू शुड बी सेटिंग दिस और यू शुड बी सेटिंग सेट बिट TR1 और सेट बिट ATH जो इंस्ट्रक्शन है। एड्रेस दे दें या दो या फिर इसका नाम दे दें, असेंबलर विल कन्वर्ट इट टू ATH। ये हो गया टाइमर वन के लिए। सिमिलरली फॉर टाइमर जीरो what we have this TF0 and TR0 और respectively इनके एड्रेस जो है 8DH और 8CH। तो either you can use this TF0 और 8DH or you can use this 8CH or TR0. Similarly this is the same mechanism for timer 0. ठीक है, so it is convenient to address each of the bits individually. अगर आप चाहें तो पूरी मूव की इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। 80H 80H का क्या मतलब है, ये हैक्स में लिखा हुआ है H, तो 8 का मतलब होता है कि 1000। ठीक है, और बाकी क्या है ऑल जीरोस, तो इट मींस कि ये 1 को सेट कर रहा है, यानी कि TF1 ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इसको कर रही है। अगर आप चाहे ज्यादा कन्वीनियंट ये कि आप सेट बिट TF1 ये कर लें जो नीचे यहाँ शो किया हुआ एट द बॉटम, तो इससे ये होगा कि और कुछ जो आपसे गलती नहीं होगी कि आपने अगर कुछ और कर दिया 81 लिख दिया सपोज हैक्स में 80 के बजाय, तो बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी। अब इससे हो क्या रहा है कि जीरो से क्या हो रहा है कि बाकी सब में जीरो अप्लाई हो गया। अब आपको पता नहीं कि जीरो अप्लाई करना है या नहीं करना, सो यू शुड बी नोइंग वेरी वेल कि आपको लिखना क्या है। तो ज्यादा अच्छा ये कि आप बिट्स को यूज करें, सेट बिट यूज करें और इंडिविजुअल बिट्स को सेट करें। ठीक है, सो दिस has the benefit of setting the high bit of TCON without changing the value। वही चीज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ आप देख पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल के। इससे ये फायदा होगा कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप बिट एड्रेसेबल लोकेशंस को एक्सेस करेंगे इंडिविजुअली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टाइमर्स की जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव a timer controller board but we have a simulator which we can do। तो वी नीड टू नो कि जी जो टाइमर है वो काउंटिंग किस तरह कर रहा होगा। ठीक है, तो वो किस तरह काउंट कर रहा होगा, उसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होंगी। फिर रिमेंबर हमने ये लास्ट टाइम ही पढ़ा था, इसके PDF के शुरू में भी लिखा हुआ है कि अ सिंगल मशीन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्रिस्टल पल्सेस। ठीक है, 12 क्रिस्टल पल्सेस होती हैं। thus a running timer will be incremented how it will be incremented this much times per second। इसमें क्या है कि क्रिस्टल की वैल्यू हम हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज भी है, और मैंने आपको एक बताया था कि इफ यू वांट टू जनरेट सीरियल पोर्ट बाउट रेट तो 11.059 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल अवेलेबल होता है। तो 8051 जो है 11.059 मेगाहर्ट्ज के साथ प्रिसाइज बाउट रेट जनरेट करता है। लाइक अगर हम 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज करूंगा तो हो सकता है कि 48100 बिट पर सेकंड जनरेट हो, लेकिन जब मैं 11.059 यूज करूंगा तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है 4800 बिट पर सेकंड वो एग्जैक्ट जनरेट होगी। तो यहाँ पर ये अज्यूम किया है कि यू हैव दिस मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल अवेलेबल व्हिच इज 11.059 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट 12 क्रिस्टल पल्सेस रिक्वायर्ड होती है 8051 को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दिस इज कांस्टेंट 12।
तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं, so you will see कि you will have this much times per second obtained. अगर आप इसको यहाँ 12 लिखेंगे तो आपके पास exactly 1 आ जाएगा, ठीक है। 12 मेगाहर्ट्ज लिखेंगे तो तकरीबन 1000 समथिंग आ जाएगा, exactly 1 आ जाएगा, ठीक है। So 1 microsecond I think आ जाएगा times per second. Unlike instructions, some of which require 1 machine cycle, others 2 and other 4, the timers are consistent, they will always be incremented once per machine cycle. अच्छा, हमने इफ यू रिमेम्बर हमने ये CAA की थ्योरी में भी पढ़ा था कि मशीन साइकिल्स कितनी चाहिए होती है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में ना, डिपेंड करता है कि आईओ इंस्ट्रक्शन है क्या है। तो ये टाइमर्स के लिए स्पेसिफिक है कि उसको हमेशा एक इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि इंक्रीमेंट अप होने के लिए, ठीक है। सो इफ यू हैव टू काउंट, or if you have counted from 0 to 50,000, you may calculate it by using this कि 50,000 divided by 921,583.0542। उसका मतलब है अगर उसने 50,000 काउंट किया होगा, क्योंकि वो हर एक काउंटिंग कर रहा है एक मशीन साइकिल में, तो उसको कितना टाइम गुजर चुका होगा, this divided by the factor we obtained here, so it is actually 0.0542 seconds, ठीक है। तो हाफ टेंथ ऑफ अ सेकंड बनता है या 1/20th ऑफ ये सेकंड बनता है, ये जो वैल्यू बनती है 0.0542, ठीक है। अगर उसने 50,000 का काउंट कर लिया तो उसका मतलब है कितने सेकंड में काउंट किया होगा। अब हम इसको देखेंगे हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 सेकंड का टाइमर बनाना है तो मुझे मेरे पास वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझे तो वैल्यू पुट करनी है रजिस्टर्स के अंदर। ये तो थ्योरी है कि जी इसमें इतना टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट किस तरह करूंगा वैल्यू में जो मैं रजिस्टर में पुट करूँ। सो वी विल सी दिस शॉर्टली। ओके, सो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। अब हमें ये पता चल गया कि 1/20th ऑफ अ सेकंड लेता है काउंट करने के लिए फ्रॉम 0 to 46,097, एंड सपोज यू वांट टू एग्जीक्यूट सम इवेंट एवरी सेकंड। आप चाहते हैं कि हर सेकंड में कोई इवेंट आप एग्जीक्यूट करें, तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि टाइमर को ओवरफ्लो कराना होगा एवरी सेकंड, कि हर सेकंड में ओवरफ्लो उस वक्त आप फिर अपना कोई टास्क है। तो आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आपको पता है कि 1/20th ऑफ अ सेकंड वो ले रहा है 0 से लेके 46,079 तक काउंट करने के लिए, तो वो 1 सेकंड तक काउंट करने के लिए क्या कुछ कर चुका होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, you simply wait for the timer to count from 0 to 46079 20 times, क्योंकि 1/20th ऑफ अ सेकंड में वो इतना काउंट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक सेकंड का ड्यूरेशन हासिल करें तो आपको फिर 20 दफा वेट करना होगा, तो 1/20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 विल इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक वो देख लेते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली इनिशियलाइज अ टाइमर। अब हम नॉर्मल टाइमर की बात कर रहे हैं कि विच इज एक्चुअली यूज्ड टू इंक्रीमेंट इन सेल्फ और यूज टू काउंट ड्यूरेशन। इस टाइमर की बात करें, अभी हम उस टाइमर की बात नहीं कर रहे जिसमें हम कहें कि नंबर ऑफ इवेंट्स हमें काउंट करना है या हमें इंटरप्ट टाइमर्स को स्टार्ट करना है। अभी हम सिंपल टाइमर को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस इन अवर और हाउ कैन एक्चुअली कॉन्फ़िगर दिस इन अवर कंट्रोलर। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले टाइमर मोड रजिस्टर जो है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें हम देखिए हम वैल्यू क्या रख रहे हैं टाइमर मोड में 0 1H, और हम टाइमर 0 को भी फिलहाल यूज कर रहे हैं। अब 0 हमने रखा है तो इससे क्या हो रहा है कि गेट 0 और जो CT0 की पिन है वो भी 0 हो गई। सो इट मीन्स कि अब हमारा टाइमर जो है वो नॉर्मल टाइमर होगा जो कि काउंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा एवरी मशीन साइकिल। और गेट 0 और CT0 से क्या हुआ कि वो इंटरप्ट पे भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ना वो किसी एक्सटर्नल सिग्नल पे डिस्टर्ब होगा जो कि इसको पिन पोर्ट 3 की 3.2 पिन से मिलेगा। So it means कि it will work stand alone without any external influence या interrupt, ठीक है। ये आपने सेट कर दिया। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि टाइमर 0 जो 16 बिट टाइमर मोड में आ गया। अब टाइमर को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट बिट TR0, जो हमने पढ़ा कि बिट एड्रेसेबल हमारा टाइमर कंट्रोल रजिस्टर था TCON, तो उसमें हम बिट। अब इससे क्या होगा कि आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइमर तो आपका स्टार्ट हो गया, बट व्हाट वी कैन डू, हमने देखा था कि टाइमर का ओवरफ्लो भी होगा। वो हम कैसे देख सकते हैं, हमने देखा था वी हैव TF1 एंड TF0 बिट्स व्हिच वी कैन एक्चुअली
रीड और वी कैन पोल टू सी कि जी हाई हो गई, इसका मतलब है कि ओवरफ्लो हो गया। दूसरी चीज ये भी होगी कि आप टाइमर की वैल्यू भी तो रीड करना चाहेंगे ना किसी टाइम पे, कि अच्छा ये टाइमर कहाँ पहुंचा है, इसने इंक्रीमेंट करके कौन सी वैल्यू अटेन की है इस मशीन साइकिल में नेक्स्ट में। सो हाउ यू कैन रीड दिस? सो वी हैव different ways to read this. Normally we have two common ways. एक तो ये कि आप एक्चुअली जो उसके कंटेंट है वो रीड करें, दूसरा है कि जब वो ओवरफ्लो हो उस वक्त उसकी वैल्यू रीड कर लें कि उस वक्त वैल्यू क्या है। अगर हम अब देखते हैं कि हम रन टाइम पे टाइमर की अगर वैल्यू रीड करें तो हम किस तरह करेंगे। अगर हमारे पास टाइमर जो है वो है 13 बिट और 16 बिट टाइमर्स, तो हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हमें हाई बाइट और लो बाइट्स को रीड करना पड़ेगा, और फिर बाद में देखना भी पड़ेगा कि यार ये जो हमने रीड की थी पहले हाई बाइट वो अभी मौजूद है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 8 बिट टाइमर मोड है, जिस तरह 8 बिट ऑटो रिलोड मोड बात की, उसमें अगर आप वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप जस्ट 8 बिट को रीड कर रहे हैं। लेकिन 16 बिट मोड में ये हो सकता है कि आपने 8 बाइट्स रीड करी और उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने दोबारा रीड करने के लिए आप गए तो फिर आपके पास हाई बाइट चेंज हो चुकी थी या लो बाइट चेंज हो चुकी थी। ठीक है, सो वी विल सी कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर और रीड फ्रॉम टाइमर। तो अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि आपके पास 8 बिट टाइमर मोड नहीं है, आपके पास 13 बिट है या 16 बिट है, तो फिर आपको ये ट्रिक कह लें या एक प्रोसीजर कह लें अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यू हैव टू रीड द हाई बाइट इन सम वेरिएबल or register and then read low byte and then again read the high byte again to see कि high byte change तो नहीं होगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें है move a में th0 and then in the rest okay, so what we said ke when you need to read from a timer, what you will be doing if it is in not in 8 bit mode कि आपको पहले high byte जो है उसको रीड करना है and then you have to read low byte and then again you have to read high byte। और अगर हाई बाइट चेंज हो गई है क्योंकि आपने प्रीवियसली इसको स्टोर कर लिया था लाइक इन एनी रजिस्टर, आपने ए में स्टोर कर लिया एक्यूमुलेटर में, तो इसका मतलब है आपको ये रिपीट का प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब आप टाइमर को रीड करते हैं फर्स्ट टाइम और जब आपने सेकेंड टाइम टी लो किया, तो ये जो मशीन साइकिल है ये इनफ है कि ऐसा ना हो कि टाइमर ने इंक्रीमेंट कर दिया उस वक्त। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यू नीड टू चेक अगेन कि अब हाई बाइट चेंज तो नहीं हो गई, वरना आपके पास गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी डू दिस। सो सिमिलर थिंग इज रिटन हियर कि हाउ यू कैन परफॉर्म दिस फंक्शन। कि यहाँ पर क्या हमने किया था कि वी लोड एक्चुअली एक्यूमुलेटर विद द हाई बाइट ऑफ द टाइमर जीरो, जो कि यहाँ किया हुआ है। वी देन लोड आर जीरो विद द लो बाइट ऑफ टाइमर जीरो, जो हमने यहाँ किया हुआ है। यहाँ आर जीरो शायद आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा। Finally, we check to see if the high byte we read out of timer zero, which is now stored in the accumulator, is the same as the current timer zero high byte। तो जो हमने compare and jump if not equal, एक ये इंस्ट्रक्शन है जो हमने पढ़ी भी थी और ये शुरू में यहाँ दी हुई भी है। तो इससे क्या होता है कि ये कंपेयर करेगा और जंप करेगा अगर दो वेरिएबल्स ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो दोबारा रिपीट पे जंप होगा और दोबारा से प्रोसीजर चलेगा। अगर ये इक्वल है तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, सो दिस वे वी कैन यूज दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली रीड द टाइमर। एक और तरीका भी है कि जी आप टाइमर को रीड करने का, लेकिन उसमें कोई मसला है कि टाइमर को अगर आप रोक के रीड करेंगे विच इज एक्चुअली टू स्टॉप द टाइमर। हमने देखा था सेट बिट हमने TR0 किया था टाइमर रन करने के लिए। अब अगर उसको क्लियर कर देंगे तो टाइमर हमारा स्टॉप हो जाएगा और उस वक्त आप वैल्यू रीड कर लें। तो जाहिर बात है जब टाइमर स्टॉप हुआ है तो उस वक्त वैल्यूज उसकी चेंज नहीं होंगी, आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी कि उस रजिस्टर्स में क्या पड़ी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका टाइमर रुक जाएगा, फिर आप जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो ड्यूरेशन जो है इन बिटवीन जो
पास हो गई है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन किस तरह है, हाउ एक्यूरेट यू नीड द टाइमर। ठीक है। अच्छा, अब आप देखते हैं टाइमिंग द लेंथ ऑफ एन इवेंट। अगर हम इवेंट को मेजर करना चाह रहे हैं तो उसमें हम किस तरह टाइमर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सिनेरियो दिया हुआ है कि हम सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहते हैं और वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ लॉन्ग अ लाइट इज टर्न ऑन ईच डे। हम देखना चाहते हैं कि कितनी ड्यूरेशन की मेजरमेंट करना चाहते हैं किसी भी इवेंट की, कितनी देर तक वो लाइट जली है या समथिंग लाइक दिस। तो इसका एक तरीका क्या है कि आप तो एक पेन, एक इसका एक प्रोसीजर ऑल्टरनेट किया अदर देन टाइमर्स के जी, आप एक पेन रिजर्व कर लें कंट्रोलर की और उसमें देखिए अच्छा जब ये लेवल हाई हुआ आपने स्टार्ट कर लिया, यानी कि लाइट जली उस वक्त आपने इसको रीड कर लिया, जब लेवल लो हुआ लाइट ऑफ हुई तो आपने इसको रीड कर लिया और फिर उसकी जो दरमियान की ड्यूरेशन थी वो आपने कैलकुलेट करके पुट कर दी, आउट कर दी, कहीं स्टोर कर दी कि जी ये इतनी ड्यूरेशन उसकी हुई है एक्टिविटी की। दूसरा तरीका क्या है जो हमने अभी स्टडी किया था, वी हैव गेट पिन्स एंड वी हैव इंटरप्ट पिन्स। तो अब गेट पिन्स का यूज यहाँ पर होगा। जो एक गेट पिन्स कह रहा हूँ, गेट का एक वेरिएबल था जो कि एक पिन पोर्ट 3 के पिन में ट्रांसलेट होता है कि उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग दिस ड्यूरेशन ऑफ इवेंट। वो किस तरह, टाइमर मोड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में हमने देखा था कि वी हैव गेट 0 फॉर टाइमर 0 एंड गेट 1 फॉर टाइमर 1। ठीक है। तो अभी हम गेट 0 की बात करते हैं कि टाइमर 0 के लिहाज से देख लेते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट और मेजर द इवेंट। हमने इससे पहले इसको क्लियर किया था क्योंकि हम जो है इसको यूज नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ टाइमर को यूज कर रहे थे। हम उसमें लोड करते थे वैल्यू और टाइमर की बिट स्टार्ट कर देते थे, सेट बिट TR0 जो हमने किया था, उससे टाइमर चलने लगता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि गेट 0 के थ्रू कंट्रोल हो, तो उसमें क्या होगा, तो हम जो पोर्ट 3.2 जो मैंने आपको बताया कि 3.2 पोर्ट 3 की कुछ पिन मल्टीप्लेक्स हुई है, तो उसमें पोर्ट जो 3.2 है उसमें इंटरप्ट 0 की जो पिन है उसमें आप अपनी लाइट का कनेक्शन या किसी भी सेंसर का कनेक्शन जिससे आप मेजर करना चाहते हैं ड्यूरेशन की, एक सेंसर कितनी देर ऑन रहा या एक्टिविटी कितनी देर रही, वो आप कनेक्ट कर दें। ठीक है। और गेट 0 की बिट को सेट कर दें। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब गेट 0 पे यानी कि पोर्ट 3.2 पे आपका हाई लेवल आएगा उस वक्त आपका टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है। और जब आपका लेवल लो हो जाएगा तो टाइमर आपका स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप सेट बिट TR0 और क्लियर TR0 इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप प्रोग्राम के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। नाउ योर हार्डवेयर और कंट्रोलर इज रनिंग ऑन इट्स ओन। और वो किस तरह रन कर रहा है कि वो एक्सटर्नल एक इनपुट पे डिपेंडेंट है। आपने जब टाइमर को कॉन्फ़िगर कर दिया, उसकी गेट 0 की पिन सेट कर दी, तो अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब मेरी पिन नंबर 3.2 पे कोई हाई सिग्नल आएगा तो मैं टाइमर को चला दूंगा, रन कर दूंगा, और जब लो होगा तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। सो व्हेन यू हैव दिस सिचुएशन, सो व्हाट यू कैन डू कि जब लो हो वो पिन तो आप देख सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन हुई, क्योंकि आपको पता है कि जब लो हुई है तो इसका मतलब है कि हाई पे टाइमर चला होगा, और लो हो गई तो टाइमर स्टॉप हो गया। सो नाउ एक्चुअली यू कैन move the value of TH1 and TH0 in your any variable to see कि जी टाइमर ने कितनी ड्यूरेशन काउंट की है। ठीक है। ठीक है। सो सिमिलर थिंग इज रिटन हियर, नो दस विद नो कंट्रोल कोड, यानी कि आपने आप कोई कोड नहीं लिखा कि आप टाइमर को स्टार्ट करने का कोड नहीं लिखा, सिर्फ आपने टाइमर मोड में उसकी मोड बता दिया कि ये मेरा टाइमर इस मोड में रन हो रहा है लाइक 16 बिट में, लेकिन अब मैं इसको गेट के थ्रू, गेट 0 के थ्रू ऑन करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं डिटेक्टिंग ओवरफ्लो की तरफ। ये जो है इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है जो भी मैंने आपको पढ़ाया। दिस इज जस्ट टू नो कि जी आप ओवरफ्लो किस तरह चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि TF0 और TF1 हमारे पास रजिस्टर्स हैं, जो बिट्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। अगर वो जब सेट होंगी इसका मतलब है कि रिस्पेक्टिव टाइमर जो है ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है। बट यू नीड टू पोल। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Whenever a timer overflows from its highest value back to 0, the microcontroller automatically sets the TFX bit in the TCON register. TFX का मतलब है TF0 या TF1 depending upon the timer जो रन हो रहा था। अगर दोनों रन हो रहे हैं तो वो TF0 को भी सेट कर देगा उसके अपने टाइम में जब वो ओवरफ्लो होता है, और TF1 को भी कर देगा।
ठीक है। अच्छा, अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें फिक्स डिले कोई जनरेट करना है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था शुरू में कि अगर हम चाहते हैं कि दिस मशीन साइकिल का डिले जनरेट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम काउंट है उसका लाइक 65535, उससे उतनी मशीन साइकिल लेस जो वैल्यू बनती है वो पुट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मसला है कि वो जब दोबारा ओवरफ्लो जब करेगा उस वैल्यू से, देन यू वुड नो कि अच्छा इतना टाइम गुजर चुका है। तो इस चीज को जज करने के लिए कि अच्छा ये ओवरफ्लो हुआ है, मींस कितनी ड्यूरेशन हो गई, हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली चेक दिस ओवरफ्लो बिट। ये सेट हो गई तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू पास हो चुकी है, इतनी ड्यूरेशन पास हो चुकी है। तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। We can use this approach to cause the program to execute a fixed delay as you हम अच्छा हमने ये पढ़ा था कि 1/20th of a second लेता है to count from 0 to 46079। ये इसकी एक स्टैंडर्ड काउंट है, ठीक है, 8051 कंट्रोलर की। अच्छा, और हम ये भी कह रहे हैं कि जो TX फ्लैग का बिट है वो उस वक्त सेट होगा जब ओवरफ्लो होगा। ठीक है। Thus, if we want to use the TX flag bit to indicate when 20th of a second has passed, we must set the timer initially to less than 40679। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि 1/20 पहले से हम स्टार्ट करें अपना काउंटर, तो हमें चाहिए कि 65536 में वो वैल्यू -46079 पुट कर दें। ठीक है। और ये बनेगी क्या आपकी, वो 19457 बनेगी, इसमें से जब माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि आफ्टर एवरी 1/20 सेकेंड ओवरफ्लो, तो हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 65536 माइनस दिस वैल्यू विच एक्चुअली इक्वल्स दिस 19457। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम टाइमर में ये वैल्यू पुट कर देते हैं TH1 और TH लो में जो 19457 है, तो उसका क्या मतलब है कि आफ्टर एवरी 120 सेकेंड जो टाइमर जो ओवरफ्लो करेगा। ठीक है। उसके लिए हमें कोड क्या करना है, अब हमें लिखना है 19457 को TH0 और TH0 में और TL0 में, क्योंकि हम टाइमर जीरो की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 76 इंटू 256 बिकम्स 19456। ठीक है। और 19456 प्लस 1 बिकम्स 19457। तो इसका जो ब्रेक करने का तरीका है वो ये है कि यू हैव 8 बिट्स इन ईच ऑफ दिस रजिस्टर्स। तो आपको 19456 को 256 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर मेरा यहाँ आता है विच आई शुड बी पुटिंग हियर। तो 19456 की जब आप 256 से करें, क्योंकि 8 बिट्स में 256 इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो यू हैव 76 हियर। तो आपको 76 यहाँ रखना होगा। आई थिंक ठीक है। सो यू नीड टू पुट दिस वैल्यू हियर। और सिमिलरली जो लेफ्ट आउट वैल्यू है वो आपको फिर यहाँ पर रखनी पड़ेगी TL0 में, जो आपकी 1 बचती है, क्योंकि आपको 19457 पुट करना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा कि टाइमर जीरो को हम मोड 16 में सॉरी मोड 0 में पुट करना चाह रहे हैं, जो है 16 में टाइमर। तो हमें टी मॉड में 01 पुट करना पड़ेगा। ये हमने टी मॉड में पहले ऊपर चेक कर चुके हैं कि क्या वैल्यू रखनी होगी। उसके बाद टाइमर को स्टार्ट करना है, तो हमने कहा था कि TR0 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइमर को एक्सटर्नल किसी इनपुट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बाय आवर ओन कोड। हमने ये भी देखा है कि हम इसको एक्सटर्नल किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, जब हमने कहा था कि ड्यूरेशन मेजर करनी है। ठीक है। तो हमने इसको TR0 से खुद ही सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जंप इफ नॉट बिट सेट। ठीक है। ये हमने क्लास में भी देखा था और मैंने आपको PDF में भी दिया हुआ है, लैब में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस इंस्ट्रक्शन है 8051 की असेंबली की, विच वॉच इट डज कि अगर बिट सेट नहीं है तो वो कहता है कि इस लेवल पे जंप करो। नाउ लेवल हियर इज डॉलर। डॉलर मींस के करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अगर यहाँ मैं डॉलर की जगह कुछ लेबल ऐड कर दूं और ऊपर कहीं उसका एड्रेस दे दूं या नाम लगा दूं, लाइक स्टार्ट लिख दूं और स्टार्ट मैंने शुरू में लग दिया, तो वो क्या करता है, ऊपर चला जाता है एट द टॉप लोकेशन। डॉलर का मतलब है कि जो करंट लोकेशन है वहीं पर ही जंप करो, करंट इंस्ट्रक्शन पे ही रहो। तो अगर ये बिट सेट नहीं है, इसका मतलब जब तक ओवरफ्लो नहीं हुआ तो ये दोबारा JNB पे आ जाएगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ओवरफ्लो नहीं हुआ फिर ये आ जाएगा, और जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो नीचे प्रोसीड करेगा। ठीक है। यही चीज डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया और आप अपने PDF में पढ़ भी लिएगा, ये पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंपल टाइमर, जो एक सिंपल हमने टाइमर जनरेट किया और देखा कब वो ओवरफ्लो हुआ, मींस कि हमने एक ड्यूरेशन देख ली। अच्छा, हमें पता चल गया इतनी ड्यूरेशन हमारी पास हो चुकी है, दिस इज फॉर द डिले। ठीक है, इतना डिले हो गया। अब हम आते हैं कि टाइमर इज एन इवेंट काउंटर। इवेंट को काउंट करना है, वो हम किस तरह कर सकते हैं।
जिस तरह अभी हमने देखा कि हम चाहते हैं कि कितने पर्सन जो है वो गुजर चुके हैं एक किसी खास लोकेशन से, या गाड़ियां कितनी या कार्स कितनी पास हो चुकी हैं, तो उसका अगर हमें इस तरह की कुछ कैलकुलेशन करनी है तो वी कैन ऑल्सो यूज द टाइमर। ठीक है, एक तो हमारी ड्यूरेशन काउंट के लिए हो गया, इवेंट काउंट के लिए भी हम टाइमर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप चाहते हैं देखना कि हाउ मेनी कार्स हैव पास्ड ओवर ओवर सर्टेन एरिया, तो हम किस तरह कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि वी शुड बी सेंडिंग सम पल्सेस। ठीक है, इसका इसके दो तरीके हैं हाउ वी कैन डू दिस, सो आई विल टेल यू इन डिटेल। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आपने एक कोई भी एक पेन ले ली पोर्ट की और उसमें कनेक्ट कर लिया सेंसर जो आपको पल्स दे रहा है कि अपॉन इवेंट अक्रंस ऑन इवेंट की जी कार आपकी पास हो रही है। ठीक है, जैसी कार पास होती है तो उसमें लेवल हाई होगा और जब वो पास हो चुकी होगी तो लेवल 0 हो जाएगा। सो दिस थिंग इज शोन हियर। ठीक है, जब आपने ये अज्यूम किया है कि जब आपका कार पास होगी तो आपके पास क्या होगा, जंप इफ नॉट बिट सेट, अगर बिट सेट नहीं है तो वो यहाँ करता रहेगा, जैसी कार पास होगी तो बिट सेट हो जाएगी और वो प्रोसीड करेगा नेक्स्ट सेक्शन पे। अब वो यहाँ क्या कर रहा है, जंप इफ बिट सेट, अगर वो बिट सेट है यानी कि अभी तक लेवल उसका 1 ही है, अभी कार पूरी पास नहीं हुई है, सो इट विल रिमेन हियर, और जैसे ही वो 0 हो जाएगा फिर वो नीचे आ जाएगा। नीचे आके क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट काउंटर, एक हमने वेरिएबल बना लिया जिसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम क्या करना चाहिए, दोबारा से यहाँ जंप करना चाहिए जो यही एक्टिविटी करे, क्योंकि ये 1 से 0 ट्रांजेक्शन पे क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली यू हैव अ पल्स विच हैज अ ड्यूटी साइकिल के जी पहले 1 होगी फिर वो 0 होगी एंड देन यू विल एक्चुअली काउंट। आप ये नहीं कर रहे कि जैसे 1 हुआ आपने काउंट कर लिया, अब 1 तो हो गया, उसके बाद हो सकता है वो 0 कुछ देर बाद हो, अगर देर इज सम प्रॉब्लम तो वो पता चला 0 हो ही नहीं और आप काउंट करते जा रहे हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है कि आपने पहले इसको चेक किया कि अगर वो बिट सेट नहीं है, इट मीन्स कि अगर वो 0 है तो आप यहीं पर ही आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी, फर्स्ट वन। और जैसे ही आप 1 होंगे तो आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि वो देख रहा है जब तक बिट सेट है, जब तक 1 है तो अब यहीं पर ही रहेगा। पहले क्या होता था, जब तक 0 है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप वहीं पर ही रहेंगे। नेक्स्ट में क्या हुआ, आप जब तक 1 है आप यहीं पर ही रहेंगे, यानी कि आप 1 से 0 हो गए, अब 0 पे आप वेट कर रहे हैं। अब जैसे ही 0 खत्म हुआ दोबारा आप 1 पे आ गए, तो आपने क्या करा, जैसे फॉरन इंक्रीमेंट करा लिया। ये तो आपकी एक लॉजिक हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कोड रन कर रहे हैं तो आप कुछ और काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहीं पर स्टक रहेंगे। जिस तरह हम आपने शायद पढ़ा होगा मल्टी थ्रेडिंग अगर हम क्यों करते हैं या मल्टीटास्किंग क्यों करते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप दूसरा काम भी कर सकें कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, लेकिन इससे कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग तो नहीं हो रही है, तो माइक्रो कंट्रोलर का मिसयूज है, ओवरकिल है। क्योंकि आपका जो कंट्रोलर है वो तो एक तरह से ये आप डिजिटल लॉजिक से भी कुछ काम कर सकते थे कि आप वहां पर एक आपने एंड और गेट लगा दी जो 1 0 की ट्रांजिशंस को डिटेक्ट करके इंक्रीमेंट करा देगा काउंटर का एक आईसी। ठीक है, डिजिटल सर्किट को। तो फिर आप कंट्रोलर क्यों यूज कर रहे हैं। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि हाउ व्हाट एवर यू कैन डू, आप कंट्रोलर से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम है, अब इसको काउंटर करने के लिए, इसको कैटर करने के लिए वी हैव अनदर सॉल्यूशन, ताकि हम अपना काम कंटिन्यू कर सकें। और वो हमारे पास क्या है, अब इसका तरीका क्या है कि इफ यू रिमेंबर हमारे पास दो स्पेशल पर्पस बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के अंदर लाइक टी कॉन के अंदर आपको नजर आ रहे थे, एक गेट नजर आ रहा था और एक सीटी नजर आ रहा था, सीटी 0 सीटी 1। तो जो सीटी 0 की जो बिट है इसको अगर आप सेट कर देंगे जो कि बिट 2 है टी कॉन के अंदर, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके पास इसमें कोई वैल्यू सेट होगी 1 या 0 ट्रांजिशन की, तो फिर ये आपको इंडिकेशन दे देगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप वहां पर आप लूप लगाएं और वेट करें, आप अपना काम करते रहो, जैसे ही ये कुछ बिट सेट हो तो उस वक्त आपका जो एक रूटीन चल जाए जो इसको इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, तो द डिटेल इज रिटन हियर। इफ द बिट इज क्लियर द टाइमर 0 विल बी इंक्रीमेंटेड एवरी मशीन साइकिल, जो हम देख चुके हैं, जो हमने पहले किया था उसको क्लियर किया था। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड टू मेजर द टाइम, हाउएवर इफ वी सेट दैट ct 0 टाइमर 0 विल मॉनिटर द p3.4 लाइन। अब टाइमर 0 p3.4 लाइन को मॉनिटर करेगा। दिस p3.4 लाइन इज फिक्स्ड।
ठीक है, अगेन इट्स अ डुअल पर्पस कोड। तो P3.4 को फिक्स किया हुआ है फॉर दिस पर्पस कि अगर आपने ये बिट को सेट कर दिया तो क्या होगा कि टाइमर 0 जो है वो मॉनिटर करेगा P3.4 को। इट मींस कि यू कैन डू योर ओन वर्क, ठीक है। और टाइमर 0 विल काउंट इवेंट्स ऑन द P3.4 लाइन। सो हम क्या करेंगे अपने केस में कि जो हमारा सेंसर है जो हमें 10 की पल्सेस दे रहा है फॉर एवरी कार्ड पासिंग थ्रू अवर एरिया, हम क्या करेंगे P3.4 को वहां कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी टाइमर इंक्रीमेंट किस कंडीशन में होगा, जब हमारे पास यहाँ पर एक कोई ट्रांजिशन आएगा सिग्नल का। सो इन दिस वे टाइमर इज एक्चुअली इंक्रीमेंटिंग इटसेल्फ अपॉन रिसेप्शन ऑफ अ पल्स ऑन दिस पर्टिकुलर पिन 3.4, ठीक है। तो इसका लास्ट लाइन में भी ये लिखा हुआ है, वी जस्ट रीड द वैल्यू ऑफ टाइमर 0, द वैल्यू ऑफ टाइमर 0 विल बी द नंबर ऑफ कार्स दैट हैव पास्ड। सो होपफुली आप लोगों को ये कुछ समझ में आ रहा होगा। इट इज थ्योरी बट इट इज नेसेसरी टू डू अवर असेंबली लैंग्वेज। कि आपको असेंबली में कुछ तो करना है कि इंस्ट्रक्शन आप किसको देंगे, कंट्रोलर्स को देंगे, सीरियल पोर्ट को देंगे, एलसीडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देंगे। एंड दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन ऑफ दिस एक्टिविटी कि इसमें ये कि अगर आपका कोई इवेंट 500,000 टाइम्स पर सेकेंड से ज्यादा दफा होता है तो वो फिर कंट्रोलर मॉनिटर नहीं कर पाएगा। बट दिस इज नॉट द केस फॉर आवर नॉर्मल केस की जो कार है वो ऐसा नहीं होगा कि एक दफा में एक पल्स के अंदर वो 5 लाख दफा गुजर जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग रेजोल्यूशन व्हिच इज रिटन हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या क्या और हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द टाइमर सेक्शन। नाउ वी विल सी some examples of timer. अच्छा, I request you to show me your AdSim simulator. Share your screen and show me the AdSim simulator running because I want you to run the code. मैं आपको कोड शो करूंगा and I want you to run that code, ठीक है। So just one by one, but all of you should be sharing with me the code. AdSim simulator को रन करें and show me the code. Okay, so AdSim रन करें और मुझे शो करें स्क्रीन ताकि आई विल शो यू द कोड कि जो हमें अभी रन करना है। अच्छा, दूसरा जो मुझे जो अभी नजर आ रहा है कि जो जो अभी प्रेजेंट है, एक तो तूबा है, तैयबा है, जुनैद है, अनस है, ठीक है। और तैयबा का 2 दफा आ रहा है स्क्रीन। आई डोंट नो कि ये तैयबा के नाम से कोई और भी बैठा हुआ है, कोई कुली का आपकी जो आपकी अकाउंट तो नहीं यूज कर रही। आई डोंट नो तैयबा जुबैर 2 दफा क्यों आ रहा है मेरे पास। ओके, सो ठीक है, एडसिम को रन करें। अब मैं एडसिम शेयर करता हूँ। ओके, मैंने आप लोगों को कहा है अपना, आप लोग मुझे नाम और ERP आईडी भी लिख के फॉरवर्ड करें, ठीक है। जल्दी से फॉरवर्ड करें ERP आईडी और नाम लिख के, सो दैट आई वुड नो। ERP आईडी मुझे भी हर एक की कंफर्म नहीं है।
ओके, सो जो लोग अभी एडसिम नहीं चला रहे वो मुझे मैसेज करके बताएं कि क्यों नहीं रन कर रहे और क्यों नहीं शेयर कर रहे स्क्रीन, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस सीरियसली, बिकॉज वी नीड टू कवर दिस। मेरा पढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा प्रोग्रामिंग करके, क्योंकि इस कोर्स में हमें प्रोग्रामिंग भी कवर करनी है, थ्योरी भी हमने कवर की है, थ्योरी और मैं नेक्स्ट टाइम भी पढ़ाऊंगा, बट वी नीड टू कवर दिस असेंबली लैंग्वेज। So I want you to share. Where is Anas? What is your status? Okay, 1 minute. मैं इसको अलाउ करता हूँ। Okay, so okay, I have allowed multiple, now multiple participants can share their screen. ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर करें। So ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ, अभी अनस ने शेयर किया है कि हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस। सो सिंपल प्रोग्राम जो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि करें कि like Anas, first of all you should be knowing कि how we can actually see something visually ना, तो हमें जो हमने कहा था कि LCD जो 7 सेकंड डिस्प्ले था उसमें हम चाहे तो कर सकते हैं, so you should be knowing this। तो अभी मैं ये करता हूँ कि प्रोग्राम एक शेयर करता हूँ, I want you to run this, जिससे आपको पता चलेगा कि how you can actually configure और यूज़ टाइमर्स, और उसको फिर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये जो है टाइमर 7 सेकंड का एक प्रोग्राम है। आई एम शेयरिंग दिस। अच्छा, अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम शेयर किया है। ठीक है, सो इन दिस प्रोग्राम व्हाट यू कैन डू, इसको अगर मैं शॉर्ट कर दूं, दिस इज अ प्रोग्राम सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें क्या कर रहे हैं कि हम just trying to see how we can actually display something over the 7 segment. Later on we will add timer here and we will see how we can control the timer also. So this is first thing to know कि आपके पास visual indication आ जाए, क्योंकि last time we were having uh, some problem कि हमें ना 7 segment में नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसको कैटर करने के लिए फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड बी एबल टू रन दिस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने डिले जनरेट किया है सिंपल, और यहाँ पर हमने डिले को एक रूटीन में फिल कर दिया है, और रूटीन की निशानी ये होती है कि इट हैज आरईटी स्टेटमेंट, जो हमें लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, तो अब डिले की रूटीन क्या कर रही है कि मूव P1 आपने मूव किया, उसके बाद डिले किया, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है ये 1 सेकंड का डिले, और इसको चलाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा एडसिम में जो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, इसको आप 10,000 कर दें। ठीक है, तो अब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो पहले P1 में वैल्यू 1 होगी, फिर डिले कॉल होगा, फिर P1 में वैल्यू जो है ये एक बाइनरी मैंने पुट कर दी है, फिर डिले आएगा। तो आपको थोड़ा
नजर आएगा कि 7 सेगमेंट किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड देन वी विल डू कि हम इसमें टाइमर को ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे कि टाइमर जब ओवरफ्लो हो रहा है तो उस वक्त वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए, ठीक है, तो अब ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको रन करें और मुझे बताएं इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं आपके पास। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसका रिजल्ट बताता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, एंड देन यू शुड बी डूइंग दिस, ताकि हमारा एडसेम पहले सही रन हो। ओके, सो होपफुली आपको नजर आ रहा होगा कि इसका रिजल्ट, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं दोबारा से रीसेट करके चलाता हूँ। ओके, सो इफ यू सी, इसको मैंने मैक्सिमम किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी 10,000 रखी हुई है। अच्छा, अब मैं इसको अगर दोबारा पॉज करके इसको रीसेट करता हूँ, दोबारा से चलाता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें पहले हुआ क्या था, जो हमारे एलसीडी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले नहीं आते थे। अगर आप यहाँ देखें P3.3 और 3.4, बाय डिफॉल्ट जब कंट्रोलर स्टार्ट होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो 3.3 3.4 है, आप इसकी लॉजिक डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लॉजिक डायग्राम में अगर आपको नजर आ रहा है कि ये जो डिकोडर है, इसकी A1 और A0 पिन जो है ये कंट्रोलर की 3.3 और 3.4 पिंस में जा रही है, और ये डिकोडर कंट्रोल कर रहा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, ठीक है, इस डिस्प्ले को कंट्रोल कर रहा है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये ऑल सेट होता है तो जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं चाहूँ तो शुरू में ऑल कर भी कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मैंने क्या किया है कि इसको क्लियर करा दिया, तो इसकी वजह से जो लास्ट वन है, फोर्थ वन, ये 7 सेगमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाउ आई एम एक्चुअली डूइंग दिस, कि मैंने शुरू में ये करा और उसको मैं अगर कर दूं सेट बीट, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये सेम है। अभी देखिए शुरू में ये रन हो रहा है, अब आप देखिएगा इसमें वैल्यू चेंज हो रही है, और जब ये लास्ट में जाएगा तो ये स्टार्ट पे जंप करेगा, और उससे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, क्लियर कर रहा हूँ। तो जब इस वैल्यू के बाद अब ये वाली पोर्ट इनेबल हो गई, ठीक है, और फिर आपके पास इसमें रिजल्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट मैं जब स्टार्ट पे गया हूँ तो मैं इसकी सिलेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट से पहले मैंने इसको चेंज किया था, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए हम एक और चीज भी कर सकते हैं, इसको हम एक और चीज भी करके देख सकते हैं रिसेट करके, कि ये इंस्ट्रक्शन जो है मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये शुरू में यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक जो है ये पहले 7 सेगमेंट ग्लो करेगा, उसके बाद डिले ये क्लियर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा कि मैंने इसको सेट कर दिया तो ये ग्लो करेगा। अच्छा, मैं यहाँ डिले भी लगा देता हूँ ताकि और आपको पता चल जाए कि किस तरह ये ग्लो कर रहा है। और इसमें सपोज मैं वैल्यू कुछ और फिक्स कर देता हूँ, सपोज मैंने इसमें 1 कर दिया, ठीक है, 1 कर दिया, ताकि आपको चेंज भी पता चले, तो जस्ट टू शो कि किस तरह। उसका मैं दोबारा रन करता हूँ तो अभी देखिए ये जले ग्लो करेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद फर्स्ट वन 7 सेगमेंट के बाद यहाँ पर कंट्रोल आएगा, यहाँ पर कुछ वो कैलकुलेशन शो करेगा, फिर दोबारा यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया, अब देखें ये दोबारा इधर आ गया, वो इस वजह से कि मैंने इसकी दोबारा स्टार्ट में किया, दोबारा मैंने ये सेलेक्ट कर ली। तो ये थोड़ा हमसे लास्ट टाइम थोड़ी मिस्टेक हो रही थी कि हमें सिलेक्शन समझ में नहीं आ रही कि ये थी कि किस तरह होगी, ठीक है। सो दिस Zoom session is actually 40 minutes long, so I think it will terminate at any time. So
हम इसको कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि जो भी हमारा कंट्रोलर का जो हमने स्टडी किया है प्रोग्राम उसको प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इसको पढ़ कर आएँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो टाइमर्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं, मगर कोई शायद पढ़ के नहीं आया, वो करें और उसका प्रोग्राम आप लोग कोई ना कोई एक बना लें, ताकि फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे शो करें या ईमेल करें, ठीक है। और अभी हम जब तक हमारे पास टाइम है हम इसकी और भी चीज़ें एडसिम की देख लेते हैं, कि हम स्विचेस वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप स्विचेस से किस तरह रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मैं कोड जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ ताकि सब लोग जो है इसको देख सकें। तो ये मैंने सब लोगों के पास ये सेंड कर दिया है कोड, ठीक है। अब लोग देख लें। अच्छा, मैं एक और कोड यहाँ पर रन करता हूँ जिससे स्विच स्विच के थ्रू हम किस तरह कर सकते हैं। अभी देखिए ये छोटा सा कोड है, पोर्ट 2 के साथ हमारे स्विचेस लगे हुए हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। मैंने अभी जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है 0 to 7, ठीक है ये, और आप यहाँ पर इसकी डिटेल यहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा चैट में लिख रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि प्लीज क्रिएट अ प्रोग्राम और टाइमर्स टू काउंट सर्टेन ड्यूरेशन, ठीक है। कोई भी आप प्रोग्राम एक नेट से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, खुद भी आपने जो समझा है पीडीएफ में दिया हुआ है जो हमने पढ़ी है। देखेंगे आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरेशन काउंटिंग के लिए ना, टू काउंट सर्टेन ड्यूरेशन। जैसे आप चाहते हैं डिले, अब जैसे यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम आपको दिया इसमें डिले मैं जो जनरेट कर रहा हूँ वो एक लूप लगाया हुआ है ना, आप उसको काउंटर से किस तरह कर सकते हैं वो देखें, सॉरी टाइमर से किस तरह कर सकते हैं वो देखें, और फिर हम नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाएं और रन करके। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि हाउ वी कैन डू दिस, कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि पोर्ट 2 में इफ यू लुक एट दिस सेक्शन जो एड सिम में आपको राइट साइड पे पोर्ट की मैपिंग नजर आ रही है। अगर आप P2.0 पे क्लिक करेंगे आपको नजर आएगा कि यहाँ पर स्विचेस लगे हैं, स्विच 7, स्विच 6, स्विच 5, 4, 3, 2, 1, 0। इन पे अगर मैं कुछ इनको हाई या लो करूंगा तो इसकी रिफ्लेक्शन मैं चाहता हूँ कि P1 पे, और P1 कनेक्ट हुई हुई है इसके साथ, सेम सेगमेंट के साथ। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। इस प्रोग्राम को देखें, जैसे मैंने रन किया तो मैंने ये क्लिक किया हुआ था 3 तो ये ग्लो कर गया, 4 क्लिक किया तो आपको शायद नजर आ रहा हो कि 7 सेगमेंट में डिफरेंट जो सेगमेंट्स है वो ऑन हो रहे हैं, ठीक है। मैं सारे सेगमेंट्स ऑन, वो किस तरह हो रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली रीड कर रहा है फ्रॉम पोर्ट 2 और उसकी जो वैल्यू पोर्ट 1 में पुट कर रहा है। जब वो पोर्ट 1 में पुट करता है तो पोर्ट 1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और जैसे मैंने कहा था कि पोर्ट 3.3 और 3.4 कंट्रोल करते हैं कि कौन सा सेगमेंट ऑन होना है। यहाँ पर क्योंकि 3.1, 3.3 और 3.4 बाय डिफॉल्ट जो पावर अप पे प्लस होता है जो वोल्टेज, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू सेलेक्ट सम अदर, ठीक है, वो पोर्ट को चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ क्लियर P3.4 लास्ट वन, बल्कि इसको मैं इसको सेट रहने देता हूँ, सेट बिट P3.2, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तब कोई और रन हो रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए सेकंड नंबर की जो है 7 सेगमेंट उसमें आपको नजर आ रहा है इंडिकेशन। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अस कि हम जब टाइमर का देखेंगे कुछ कोड रन करके तो हम ओवरफ्लो पे एक कोई वैल्यू भेज देंगे 7 सेगमेंट में, हमें पता चल जाएगा अच्छा ये रन हो रहा है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू चेंज हो गई। जरूरी नहीं कि जो आप अगर 1 भेजें तो यहाँ 1 ग्लो कर रहा हो, क्योंकि आपको उसके लिए मैपिंग भी फंक्शन बनाना पड़ेगा 7 सेगमेंट के लिए, बट जस्ट टू शो एज एन इंडिकेशन कि जी कुछ हो रहा है चेंज, वी कैन डू दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल कवर विद रिस्पेक्ट टू टाइमर। और फ्रीक्वेंसी जरूर देखें, यहाँ मैंने 10,000 रखी ताकि आप आराम से देख सकें। टाइम इस स्विच वाले केस में तो 1 भी रखूंगा तो इशू नहीं होगा, लेकिन टाइमर वाले केस में क्योंकि वो एक्चुअल ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो हर एक मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पर बढ़ा देते हैं। लेकिन स्विच वाले केस में एट एन इंस्टेंट आपका ग्लो कर जाता है तो इट डजंट मैटर, ठीक है। So this is how we will continue with the timers. So next time I request you to read the timer again and come up with some programs. और मुझे दिखाएं चैट पे या मेल करके किसी तरह के जी ये प्रोग्राम है बनाया हमने और इससे ये हो रहा है,
ठीक है, हमने पढ़ लिया। से इवेंट काउंटिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इवेंट काउंटिंग के लिए आप, ये जो हमारा एडसिम है, यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पर, हमें पता है कि अगर गेट की पिन जो है कौन सी 3.2 है या 3.4 है, आप उसके साथ कनेक्ट कर दें किसी सोर्स को, इफ़ यू कैन। यहाँ पर P3.4 अगर हम देखें, ये डिस्प्ले सेलेक्ट इनपुट है 3.2 ADC। आई थिंक दिस वाज इंटरप्ट पिन, जो हमने कहा था कि जो हम यूज कर सकते हैं एक CT0 गेट पिन के साथ। गेट आउटपुट, बल्कि आपको ये PDF में एग्जैक्ट नजर आ जाएगी कि 3.2 थी, आई थिंक 3.4 थी जो वहाँ पर शेयर हो रही थी। ठीक है, सो वी कैन प्रोवाइड हियर, अगर हम इसको कनेक्ट कर दें स्विच के साथ, कि हम कर सकते नहीं कर सकते, वी विल सी कि, ठीक है। सो दिस वे वी कैन एक्चुअली सी द वर्किंग ऑफ टाइमर। और सो नेक्स्ट टाइम आई रिक्वेस्ट यू कि जी आप लोग टाइमर पढ़ के आए, और फिर हम नेक्स्ट टाइम थ्योरी भी पढ़ेंगे। वी विल कवर एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, एंड वी विल देन कवर द टाइमर्स। नेक्स्ट टाइम हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी को कवर करेंगे, जिसमें आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, CD ROMs, DVD, व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर यूज्ड, IO मॉड्यूल्स क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, IO मॉड्यूल्स के एक्सेस टेक्निक्स, DMA एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद दैट। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज। ठीक है, सो वी विल एंड अप आवर मीटिंग हियर। प्लीज गिव मी फीडबैक कि जी आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है ऑनलाइन या नहीं। इन रिटर्न दे दें चैट पे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आई वांट यू टू गिव मी फीडबैक। देखिए आप लोगों को समझ में आया है इससे या नहीं आया, जैसे आई वांट टू नो योर फीडबैक है ऑनलाइन जो पढ़ाने, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई वॉइस का तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वॉइस मेरी सही पहुंच रही है सबके पास, साउंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सो आई वांट यू टू जस्ट गिव मी सम फीडबैक। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।